Good morning students. In my previous lecture, we have already discussed about the magnetic properties of solid, different type of magnetism in a solid. In this lecture, now I am going to discuss about the electrical properties of the solids. So, electrical property, this is our last portion of solid state. So, electrical properties. So, on the basis of electrical properties, solids are classified into three types. One is your conductor, second one is your semiconductor, and third one is non-conductor. Conductor, semiconductor and non-conductors, or non-conductors also known as insulators. So, what is conductor? Which conduct the solids which conduct electricity is known as conductor. So, conductors are of two types. One is metallic conductor. आम पाखे कंडक्टर रहा दी प्रकार गोटे मेटालिक कंडक्टर and second one is electronic conductor. Electronic conductor, or which is also known as electrolytes. Metallic conductor and second one is your electronic or electrolytes. Consider. So, what is metallic conductor? So, these are the metals which conduct electricity is known as metallic conductor. So, metallic conductor, that is आमे consider करिबा suppose आम पाखे iron, silver, gold, copper. So, these are the examples of a metallic conductor. So, metallic conductor, in metallic conductor here free electrons are responsible for conducting. Metallic conductor भितरे free electrons रा availability होची, तो जेतु free electrons रहउचंदी in metallic conductors free electrons are responsible for conducting. So, here in metallic conductor free electrons are responsible for conducting. Then जदि हमें consider करछे गोटे conductor रो conductivity power केते रु केते range पर्यंत हमर रहउची, that is in the order 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse. Conductance पाई हमें unit नेले ohm inverse here meter inverse form रे हमें रखुचे. So, the conductor पाई हमें order नउचे conductivity power lies between 10 to the power 4 to 10 to the power 7. So, the metallic conductor, the conductivity value ranges up to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse. So, ता भितरे maximum conductivity develop करूची due to presence of free electron. So, हमें metallic conductor को केमती consider करिबा. So, in metallic conductor free electrons are available for conducting and the conductivity power develops here without undergoing any chemical change. जदि गोटे आम आयरन पेस्ट नौचे तार कंडक्टिविटी देखुचे ताले सेठी कंडक्टिविटी विदाउट केमिकल चेंज इलेक्ट्रॉन रो मूवमेंट है कि का भितर कंडक्टिविटी डेवलप करूची एंड ता भितरे आमे जदि कंडक्टिविटी ताको देखुचे तो सही समय तार कोनोसी प्रकार केमिकल चेंजेस आसीबो नाही, कोनोसी प्रकार ता भितरे रासायनिक क्रिया न होइकरी इलेक्ट्रॉन्स जेतु मूवमेंट होचंती तार कंडक्टिविटी सेठिकरी डेवलप करबो. एंड जदि गोटे मेटालिक कंडक्टर कथा कंसीडर करछे, दिस आर गुड कंडक्टर भाबरे आमे कंसीडर करछे, ताले गोटे मेटालिक कंडक्टर रे आमे जदि फोकस करूचे ताले हियर द मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन सॉलिड स्टेट and in molten or fused state बोली ताको कहूचे, molten or fused बोली भी कहबा, जहाँ molten और fused बोली भी कहबा. solid state रे भी conduct करिबो, fused अवस्था रे भी से conduct करिबो. ठीक अछि, solid अवस्था रे कठिन अवस्था रे भी conduct करिबो and तरल अवस्था रे भी conduct करिबो गोटे metallic conductor. clear? So example हमें जानिले and एठी गोटे important point जोटा कि हमें पोरे discuss करिबा जे जदि हमें टेम्परेचर बढ़ाउचे, if we increase the temperature the conductivity of a metallic conductor, that is solid, decreases. If we increase the temperature, if temperature increases, then the conductivity here, conductivity
डिक्रीजेस एटा को मन रख या को हमें और टिके परे डिस्कस करबा देन हमर सेकंड टाइप रो रहला दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स सो इलेक्ट्रोलाइट रे हम एग्जांपल नौचे सम सॉल्ट नौचे सपोज नेले सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 that is your HCl hydrochloric acid so all these are electrolytes so electrolyte portion आमे already first year रे cover करिचे in ionic equilibrium portion रे आमे electrolyte विषय details रे पढिचे about electrolyte strong electrolyte weak electrolyte and the degree of dissociation तो से विषय आमे consider करचे so electrolyte आमे का कहचे these are the solids आमे electrolyte के कहचे these are the solids in which the conductivity power is developed either in the fused state or in aqueous state सोडियम क्लोराइड जदि आमे नौचे सोडियम क्लोराइड को फ्यूज करबा मींस मेल्ट करबा किंबा ताको वाटर रे डिसॉल्व करबा aqueous state बोली आमे कंसीडर करचे कोनोसी भी अवस्था रे जदि से कंडक्टिविटी पावर ता भीतर डेवलप करचे ताको आमे कहचे इलेक्ट्रोलाइट्स So electrolytes are the substances in which the conductivity develops either in fused state or in aqueous state due to movement of ions. तामाने metallic conductor रे हमें consider करते free electrons are available for conducting whereas in electrolytes ions are responsible for conducting. Means of the sodium chloride नौचे या को हमें melt करिबा किंबा aqueous medium रे दबा dissolve करिबा ताले ए जगह रे से कन्वर्ट हे जिवो कोन डिसोसिएशन है कि Na+ एंड Cl- को कन्वर्ट हबा बा K+Cl- को कन्वर्ट हबा बा H2SO4 H+SO4 2- को कन्वर्ट हबा मींस से आयोनाइज है कि आयन को कन्वर्ट हबा एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भितरे हमें कोन कंसीडर करबा आयन्स माने जेतु रहुचंती एक्वस मीडियम को देला परे आयन्स माने फॉर्मेशन होचंती हियर आयन्स आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग ठीक अछि देन हमें जदी कंसीडर करबा इलेक्ट्रोलाइट रो मु ऑलरेडी कहली कि सॉलिड मेटालिक कंडक्टर रे सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट रे कंडक्ट करबा बट इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करबा केते बेले आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट किनु सॉलिड स्टेट रे से कंडक्ट करबो नाही सोडियम क्लोराइड सॉलिड अवस्था रे कंडक्ट करबो नाही दैट इज परफेक्टली और नॉन कंडक्टर भाबरे ताको हमें ट्रीट करबा बट जदी ताको मोल्टन स्टेट ताको मेल्ट करबा किंबा aqueous state water रे dissolve करबा सही अवस्था रे से कंडक्ट करबो देन हमर रहला if we increase the temperature the conductivity also increases एठी हमर टेम्परेचर जदी हम इंक्रीज करबा कंडक्टिविटी इंक्रीज करबो काहे न जति हम टेम्परेचर बढ़ेबा तल तार डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज करबो आयन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़िबो तो सही हिसाब रे तार कंडक्टिविटी मध्ये बढ़िबो ठीक अछि मतलब हमर फोकस पॉइंट हैला दिस पोर्शन दैट इज योर मेटालिक कंडक्टर विषय ही हम डिटेल्स रे जिबा ओके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर विषय हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रे पढिबा ताको किछि पोर्शन एंड फर्स्ट ईयर आयनिक इक्विलिब्रियम रे शेष करि सारिছে ता विषय रे देन हम जाउचे सेकंड वन इज योर सेमीकंडक्टर तले सेमीकंडक्टर का को कहबा मु फर्स्ट थर्ड वन को डिस्कस कर दउचे आगा नॉन कंडक्टर कंसीडर कर दउचे देन हमें सेमीकंडक्टर विषय रे आगो को बढ़ी के जिबा सो जिबा नॉन कंडक्टर सो व्हाट इज नॉन कंडक्टर तो कंडक्टर जानिले नॉन कंडक्टर कोन हला तार ऑपोजिट व्हिच डू नॉट द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज नॉन कंडक्टर सो द नॉन कंडक्टर इन द नॉन कंडक्टर द कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन 10 to the power -20 to 10 to the power -10 here this is your ohm inverse and meter inverse the conductivity lies between 10 to the power -20 to 10 to the power -10 but metallic conductor हमें conductor पाई नहीं थिले वैल्यू 10 to the power 4 to 10 to the power 7 को हमें कंसीडर करथिले तो नॉन कंडक्टर पाई और इंसुलेटर पाई वैल्यू नेले 10 to the power -20 to 10 to the power -10 सो नॉन कंडक्टर तो जानिले या विषय हमरा किछि भी अधिक जानिबार नाही सो यार कंडक्टिविटी वैल्यू एति की एग्जांपल हमें जदी कंसीडर करछे हमें जदी भी टेम्परेचर इंक्रीज भी करबा तले कंडक्टिविटी ता भीतर डेवलप करबो नाही तो दैट इज योर नॉन कंडक्टर कैटेगरी रे हमें रखुछे फॉर एग्जांपल हमें नउछे सल्फर फास्फोरस प्लास्टिक नबा रबर नबा ग्लास नबा तो ये हमर रहिला नॉन कंडक्टर कैटेगरी रे सो वर्तमान आमे बुझिबा व्हाट इज सेमीकंडक्टर
सो सेमीकंडक्टर कहले कौन जानचे द सब्सटेंस व्हिच कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर दैट इज योर इंसुलेटर जहार कंडक्टिंग पावर इन बिटवीन रोचे कंडक्टर एंड इंसुलेटर भितरे ताको आमे कहूचे सेमीकंडक्टर बोली कहबा त माने सेमीकंडक्टर रो कंडक्टिविटी वैल्यू रोचे केते रु केते रेंज पर्यंत दैट इज योर 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 देखो कंडक्टर पे स्टार्ट हेतला 10 टू द पावर 4 रो तो सेमीकंडक्टर पे हमर वैल्यू रहला 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 दिस इज आल्सो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स फॉर्म रे हमें कंसीडर करछे सेमीकंडक्टर रो कंडक्टिंग वैल्यू तले सेमीकंडक्टर केस रे हमर कोन रहउची एग्जांपल नउचे हमें सिलिकॉन जर्मेनियम ऑलरेडी कहली कि सेमीकंडक्टर रो कंडक्टिंग वैल्यू लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर सो इन जनरली हमें कंसीडर करछे सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो नॉन कंडक्टर्स बट गोटे नॉन कंडक्टर भितरे किछि डिफेक्ट आसिला हमें डिफेक्ट पार्ट पढ़ी चलले ऑलरेडी किछि डिफेक्ट अराइज करे ड्यू टू सम डिफेक्ट and also some doping process or by you increasing the temperature the electrons due to movement of electron the conductivity here develops in case of a non-conductor and some extent non-conductors are capable of conducting electricity these are known as semiconductor example hame nau je silicon and germanium या विषय हमें बहुत किछ आगु को पढिबार अछि सो एतिकी रहिला हमर कंडक्टिंग पावर ऊपर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऊपर बेस करके हमें पढिले कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर ठीक अछि देन हमर इंपोर्टेंट पोर्शन आसला से गुडे क्वेश्चन एंड फॉर दिस ईयर दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट एंड पिला माने तमे ऑलरेडी बाबूजी फिजिक्स रे तमे ऑलरेडी पोर्शन कवर करि सारिचो सेमीकंडक्टर पोर्शन तो तुमको बुझिबार किछि भी प्रॉब्लम नाही सेम जिंस हमें नोच दैट इज योर बैंड थ्योरी से तुम डिटेल्स रे जाउछो फिजिक्स रे या को हमें मध्य केमिस्ट्री रे यूज करबा सॉलिड स्टेट दैट इज योर बैंड थ्योरी ठीक अछि सो बैंड थ्योरी में कोन पढिबा जनरली द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल और सॉलिड हमें कंसीडर करछे कोन बाय ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जत्ते हमर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हबो तार कंडक्टिविटी से अनुसार भी डेवलप करबो सो बैंड थ्योरी जिबा पूर्वरु मु तुमको टिके कांसेप्ट नउची फर्स्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग रे हमें पढ़थिले दैट इज योर लास्ट पोर्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी तो ताकू टिके रिकॉल करो तो जदियो हमें से सब जिंस लॉन्ग क्वेश्चन भितर लिखिबानी बट बुझिबा पय हमको सहज हबो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कांसेप्ट नबा सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रे कोन कहिथिले सपोज मोर एग्जांपल नै जाउची ए जगह रे सपोज मो पाखर अछि लिथियम स्मॉल साइज मेटल एटम नउचे स्मॉल साइज एटम कथा कहना तमे से जगह रे सोडियम पोटेशियम जहां भी कंसीडर कर परिबो से अनुसार हमें नै परिबा तो गोटे स्मॉल साइज एटम नउचे बुझिया पय सहज हबो लिथियम लिथियम रे एटॉमिक नंबर केते एठी 3 बोली हमें जानि छे सो जदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखुचे सो दिस इज 1s2 2s1 ठीक अछि सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम पय रहला 2s1 S1 बोली हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर करे तले जदी लिथियम भितरे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डेवलप करूची इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट फॉर इनर सेल इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन दैट इज योर बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेशन करिवेनी कि से माने मध्य कंडक्टिविटी पावर डेवलप करिबारे कोनोसी प्रकार सहाय्य करिवे नाही केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर बेस करबा हमर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ताको बेस करके नउचे सो हियर 2s1 जदि मो पाखरे दीटा लिथियम एटम अछि बुझिबा जदि मो पाखरे दीटा लिथियम एटम अछि सो दिस इज आल्सो 1s2 2s1 मींस यार भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s1 यार भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s1 तले हमें से जगह रे पड़छे दीटा एटॉमिक ऑर्बिटल जदि परस्पर को अप्रोच करूचंदी if two atomic orbitals combine together or approach each other they form linear atomic combination जोटा को हमें पढ़थिले तो if two atomic orbitals combine each other then two molecular orbitals are formed one is your bonding molecular orbital second one is anti bonding molecular orbital so overall हमें एठी बुझिले bonding molecular orbital formation होची कोठू जदी attractive overlap हमें एटॉमिक ऑर्बिटल रे अट्रैक्शन भी होची साइमल्टेनियसली
रिपल्सन भी होची जदि अट्रैक्टिव ओवरलैप दैट इज योर एडिटिव नेचर जो आम कंसीडर करछे सो अट्रैक्टिव ओवरलैप हेले आम पाउचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जदि रिपल्सिव ओवरलैप होची ताको आम कंसीडर करूचे सब्ट्रैक्शन जोटा को आम कंसीडर करूथिले तले रिपल्सिव ओवरलैप फलरे आम पाउचे कोन दैट इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ताको बुझिबा पई देखो दिस इज योर एटॉमिक ऑर्बिटल मु अनुसार रिप्रेजेंट करि दउची एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहला हमर कोन 2s1 दिस इज योर 2s1 दिस इज आल्सो 2s1 एथिरे भी गोटे इलेक्ट्रॉन रहला एथिरे भी गोटे इलेक्ट्रॉन रहला ये रहला गोटे लिथियम एटम and this is also another lithium atom and when these two atomic orbitals approach each other then two molecular orbitals are formed. One is your bonding molecular orbital which is in the lower energy level than atomic orbital. Atomic orbital ro nijor energy jetti ki bi thila bonding कर साला परे जदि molecular orbital bonding molecular orbital formation होचंदी तार normal atomic orbital ठू भी energy कम रहबो ता माने से lower state रहबो this is your energy level diagram so ये रहला bonding molecular orbital and another one molecular orbital formation होची से रहला कोन anti bonding molecular orbital so bonding molecular orbital पय हम एठी रिप्रेजेंट करले ss ओवरलैप हेकरी हमर फॉर्मेशन होछ कोन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हला सो दिस इज मुता को लिखली सिग्मा 2s so 2s पय रिप्रेजेंटेशन देसन सो दिस इज सिग्मा 2s तले एथिरे गुटे इलेक्ट्रॉन अछि त माने गुटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल भलिया गुटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मध्य रे हमर दुटा इलेक्ट्रॉन ही धरिबो सो दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर occupy the bonding molecular orbital and here the anti-bonding molecular orbitals remains vacant so anti-bonding को हम representation को नेतले star symbol देके represent करथिले तले anti-bonding रे हमर कहला vacant हे गला से जगह रे ठीक अछि तो सो कोन कहले लिथियम दीटा atomic orbital approach कले दीटा molecular orbital formation हबो one is your bonding molecular orbital second one is your anti-bonding molecular orbital and the electrons always occupy first bonding molecular orbital and if the bonding molecular orbitals are filled up then the electron enter to the anti-bonding molecular orbital but हमको गोटे इलेक्ट्रॉन अछि तो ए जगह रे हमरो दीटा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑक्युपाई करि रहउछन्ती त माने एठी कोला एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हला वैकेंट अछि ठीक अछि तो सेही हिसाब रे जदि मु गोटे क्रिस्टल कथा कंसीडर करूची लिथियम रो क्रिस्टल नउची मेटल क्रिस्टल नउची त मेटल क्रिस्टल भीतर एमती गोटे दीटा तीनटा पांचटा 10टा एटम त नथिबे ता भीतर इन टर्म्स ऑफ मोल्स तो मोल्स माने भाबुचो केते दैट इज योर एवोगाड्रोस नंबर हमें पढिसे 6.023 * 10⁻23 एत्ती की संख्या रे हमर एटम्स प्रेजेंट अछंदी ता माने यदि सेत्तिकिटा एटॉमिक ऑर्बिटल हमर परस्पर अप्रोच करिवे क्लोज आसीबे तो एक्जेक्टली सेत्तिकी नंबर हमर जत्तिकी अप्रोच करिवे सेत्तिकी नंबर हमर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हबो तो सपोज मैं एठी कंसीडर कर देली इफ देयर आर n number of lithium atoms combined together to form n number of molecular orbitals ठीक अछि सो n number of molecular orbital रो n/2 रहबा bonding n/2 रहबा हमरा anti bonding clear जदि if there are n number of lithium atoms represented that is your molecular orbital theory अनुसारे तले हम पाखे रहबो n number of molecular orbital so then n/2 number of bonding molecular orbitals there and n/2 numbers of anti-bonding molecular orbitals are there. So तले यदि एते संख्या रे molecular orbitals हमर फॉर्मेशन होउछंती ता माने molecular orbital means कोन ताको एनर्जी अनुसार हम ताको रिप्रेजेंट करूचे तो सपोज म ताको ए अनुसार रिप्रेजेंट करूचे तर दिस इज योर n number of atomic orbitals ताको हमें कंसीडर करले n नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स तले जो n नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर को अप्रोच करूछंती तले मार्क करो आम पाखरे कोन रहइबो n/2 number of molecular orbitals and similarly n/2 number of molecular orbitals form anti-bonding molecular orbital these are bonding these are anti-bonding तो जो bonding होंतु बा anti-bonding molecular orbital होंतु से मानकर निजस्व किछि किछि एनर्जी अछि तले जदि ताको हमें एकाठी फ्यूज करिया मर्ज करिबा से एनर्जी लेवल गुडा को एकाठी मर्ज करिबा तले ताको हमें कंसीडर करिया दिस एनर्जी these molecular orbitals are fused together to form
energy bands. So bonding molecular orbital and these are your anti-bonding molecular orbital. They form energy band. ठीक अछि तले इलेक्ट्रॉन को जगह रे रहइबो इलेक्ट्रॉन हमर रहउची bonding molecular orbital. Valence electrons are present at the bonding molecular orbitals. ठीक अछि whereas anti-bonding molecular orbitals remaining vacant. सेटा को हमें vacant कहले. So here the energy band which is formed by the combination of bonding molecular orbital is known as valence band. ताको हमें नाम दोचे valence band because here valence electrons are present in the valence band, that is your bonding molecular orbitals. Clear? Whereas anti-bonding molecular orbital, these are your empty band. एठी इलेक्ट्रॉन नाहांती खाली जगह केवल बैंड्स क्रिएट होचंदी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स रे हमर बैंड फॉर्मेशन होची ताको हमें कहले एम्प्टी बैंड और आल्सो नोन एज कंडक्शन बैंड. दिस इज नोन एज कंडक्शन बैंड और एम्प्टी बैंड. क्लियर? वैलेंस बैंड हमर फॉर्मेशन होचंदी ड्यू टू bonding molecular orbital and the electrons always occupy bonding molecular orbital then फिलो बला पर anti bonding को जिबे but ए जगह रे हमें कोन कहले valence electron occupy करले कोन valence electron occupy करले bonding molecular orbital रे whereas anti bonding को ला vacant रहिला तो bonding molecular orbital merge है कि जो energy levels तांगर जो merge है कि fuse करी कि formation होचंदी valence band whereas anti bonding molecular orbitals that energy levels are overlapped to form conduction band or empty band. If there is some gap between valence band and conduction band, that gap is known as energy gap. A gap को हमें नाम देले कोन energy gap. This gap lies between valence band to conduction band. Valence और conduction band भीतर जो किछि gap formation होची से gap को नाम देले हमें energy gap और forbidden zone और एनर्जी बैंड ए भाबरे हमें ताको कंसीडर करले बैंड गैप बोली हमें ताको ना देले. ठीक अछि सो बर्तमान या पर डिपेंड करूची हमर बैंड थ्योरी. सो बैंड थ्योरी रे हमें कोन पढिले वैलेंस बैंड जोटा कि फॉर्मेशन होचंदी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रो and anti bonding रू फॉर्मेशन होले कंडक्शन बैंड और एम्प्टी बैंड and तांको भीतर गैप को हमें ना नले एनर्जी गैप और बैंड गैप और फॉरबिडन जोन बोली हमें ना देले. बतन बैंड थ्योरी रे हमें पढिबा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज योर कंडक्टर रे कोन होची नॉन कंडक्टर और इन्सुलेटर रे कोन होची एंड सेमीकंडक्टर रे कोन होची. फर्स्ट हमें देखिबा कंडक्टर. सो कंडक्टर रे कोन होची पिला मन देखो. So suppose मु consider कली here energy level. So एठी हमें consider करूची कंडक्टर केस रे मार्क करो. here first जोटा मु रिप्रेजेंट कली ये रहला हमरा वैलेंस बैंड एंड ए बैंड को जो रिप्रेजेंट कली ये रहला हमरा एम्प्टी बैंड और कंडक्शन बैंड. ठीक अछि ता माने हमें देखिबा सो इन कंडक्टर द कंडक्शन बैंड और एम्प्टी बैंड इज ओवरलैप्ड ए माने परस्पर लागि के रहबे ओवरलैप्ड विथ द वैलेंस बैंड. द कंडक्शन बैंड इज ओवरलैप्ड विथ द वैलेंस बैंड means there is no energy gap between conduction band and valence band. That means the electrons are present in the valence band. Valence band रे हमर इंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल हियर एट रूम टेम्परेचर जेतु अंक भीतर किछि गैप नै परस्पर ऊपर ओवरलैप करि आइ छथि किछि मात्रा रे ताले एठी कोन होछि जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होछथि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल होछथि इवन एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर जदि हमें कंसीडर करछे रूम टेम्परेचर नउछे ताले सही अवस्था रे मध्य किछि इलेक्ट्रॉन तो स्थिर होई कि रहिबेनी ना स्टेबल है कि रहि परिबेनी तो मूवमेंट करछथि तो मूवमेंट कला बेले किछिटा इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ले वैलेंस बैंड रो कंडक्शन बैंड को कबे क्रॉस करके आसी जिबे. तो जदि क्रॉस करके आसीबे तो जते कंडक्शन बैंड रे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हे जिबे एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन द कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर?
ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दैट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड द कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ता भीतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डेवलप करिवो बट आमर पॉइंट थिला इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर जदि मु बढ़ेबी मार्क करो जदि टेम्परेचर बढ़ेबी ताहाले कोन कहितली कंडक्टिविटी ता डिक्रीज करबो तो ग्रेजुअली मु जतले धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़े चलिली गोटे कंडक्टर को टेम्परेचर दे चलिली ता माने इलेक्ट्रॉन्स जहा थिला वैलेंस बैंड रे दोज इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस कोन एक्सेप्ट करबो काइनेटिक एनर्जी से माने काइनेटिक एनर्जी तांकर इंक्रीज करबो because kinetic energy is directly proportional to temperature. If we increase the temperature, its kinetic energy get increased and the electron valence band easily jump करके आसी जिबे कोडे conduction band को पुनी फर्दर जदि हमें टेम्परेचर बढ़े चलीचे तले दरकार पड़ले से इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पाई कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गेन करके दरकार पड़ले कंडक्शन बैंड रो मध्य एस्केप करके पळेबे बाहर की रिमूव होके पळेबे ठीक अच्छे तो आम कहले जिते अधिक संख्यार इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हम जिते अधिक संख्यार इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम तार कंडक्टिविटी से डेभलप कर बट जब टेम्परेचर मु बढ़े चली कंटिन्यूअसली से जगह दरकार पड़े इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर किसी गैप ना किसी टेंशन ना प्रेशर ना तो इजिली से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड छाड़ी बाहर के रिमूव हो कंडक्शन बैंड को रिमूव करके पलैबे छाड़ी के पलैबे ठीक अच्छे माने तार कंडक्टिविटी टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन अधिका थिला तो ताकर कंडक्टिविटी अधिका थिला जदि हमर टेम्परेचर इंक्रीज कर दउचे ताले कंडक्टिविटी कहला डिक्रीज कला फॉर ड्यू टू दिस पर्पज ये रहला हमर कंडक्टर देन सेकंड वन आमे जाउचे दैट इज योर नॉन कंडक्टर सो देखिए नॉन कंडक्टर देन नेक्स्ट पोर्शन हमर सेमीकंडक्टर जा भीतर हमें डिटेल से दिबा तो नॉन कंडक्टर रे कोन होला बोले so non-conductor this is your valence band and this is your conduction band ये रहला हमरा valence band and ये रहला हमरा conduction band so देखो difference कोन देखुछो there is a gap and this gap is known as कोन energy gap or forbidden energy or band gap बोली हम ताको ना कहिचे ताले एठी कोन होची वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड भितरे गोटे लार्ज गैप रोची से गैप ऑलमोस्ट आम कंसीडर करछे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इन केस ऑफ डायमंड इज ए बैड कंडक्टर बोली आम कंसीडर करछे सो एग्जांपल नेछे डायमंड केस रे दिस गैप becomes that is equal to 7 electron volt so overall वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड भितरे बैंड गैप हमर मैक्सिमम एनर्जी गैप मैक्सिमम रहइबो इन केस ऑफ नॉन तामाने जदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहले वैलेंस बैंड भितरे ताले सेही इलेक्ट्रॉन मानक भितरे एते कैपेसिटी नथिबो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो बा इवन टेम्परेचर इंक्रीज करले हो एते बड़ गैप को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन जंप करके आसी परिबे नाही जदि इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्शन बैंड को आसीबेनी तामाने ता भितरे कंडक्टिविटी डेवलप करबा नाही द नॉन कंडक्टर becomes non-conducting that is electrical conductivity tar capacity nahi kon pai because here the band gap is maximum in between valence band and conduction band and at ordinary temperature even by increasing temperature the electron do not get such much energy to cross this valence band to conduction band tanga pakke setti sufficient energy nahi ja phale se valence band to conduction band को cross करके जाई परिबे तामाने तांका भितर कंडक्टिविटी डेवलप करबा नाही ठीक अछि सो नेक्स्ट क्लास we will discuss about semiconductors in detail. Thank you.